Good evening, dear students. We were studying unit number 4, that is rings. Rings. Unit number 4 for BSc BCA semester 4th students. BSc BCA semester 4th students. So, till now, we have studied about definition of a ring and its examples from number system. Firstly, we took the example of set of integers under addition and multiplication, and it forms a ring, that is the commutative ring with the unity. After that, we studied another most important example of a commutative ring without unity, that is set of even integers. Then set of rational numbers forms a commutative ring with unity, and set of irrationals does not form a ring. Okay, and after that set of real numbers also forms a commutative ring with unity. Today we will prove one most important result, that is the set of complex numbers under two binary operations, addition and multiplication. Does it forms a commutative ring? Is it forms a ring with unity? Is it commutative? It has a unity. So वो हम डिस्कस करेंगे. So before proceeding towards that result, firstly I want to prove two important results. First one, example, we can say example or exercise. Sorry. Okay. Prove that a ring R of prime order is commutative. ये आपने प्रूव करना है. Prove that a ring R of prime order is commutative. या आपको पूछा जा सकता है, is a ring R of prime order is commutative? Is it commutative? किसी भी रिंग R का अगर ऑर्डर प्राइम हो, मतलब ऑर्डर 2 हो, ऑर्डर 3 हो, ऑर्डर 5 हो, ऑर्डर 7 हो, ऑर्डर 11 हो, so is it forms a commutative ring? So let us prove it. या solution लिखेंगे इसका हम. Let R, अब R रिंग है तो दो ऑपरेशन के अंदर होगी, अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन. लेट R under two operations, that is addition and multiplication, be a ring of prime order. That is order of a ring R is equal to prime P. Say prime P. Okay. अगर R रिंग है अंडर टू बाइनरी ऑपरेशंस, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दिस मींस अंडर एडिशन ये अबेलियन ग्रुप बनाएगी. ओके, मतलब ग्रुप बनाएगी. सिंस R under addition and multiplication is a ring, so
R under addition is an abelian group, is an abelian group. R under addition and multiplication is a ring of prime order. So R under addition abelian group बनाएगी और वो भी किस ऑर्डर का होगा? प्राइम ऑर्डर का होगा, ऑफ प्राइम ऑर्डर टू, दैट इज ऑर्डर ऑफ ए रिंग R, वो प्राइम P रहेगा। ओके, अब हमें पता है एक रिजल्ट, जब हमने चैप्टर नंबर 3 या 2 किया था उसमें एक रिजल्ट पढ़ा था कि कोई भी ग्रुप, अब ये एबिलियन ग्रुप है या सिंपल ग्रुप है, कोई भी ग्रुप जो प्राइम ऑर्डर का होगा वो साइक्लिक भी होगा। ठीक है, वो कोई भी ग्रुप जो प्राइम ऑर्डर का होगा वो साइक्लिक भी होगा। ठीक है, तो दिस मीन्स या ऐसे कह सकते हैं कोई भी हाँ, सो R under addition is a cyclic group, cyclic group of prime order, और प्राइम ऑर्डर क्या है? P। अब देखिए R अंडर एडिशन ये साइक्लिक ग्रुप हुआ किस ऑर्डर का? प्राइम ऑर्डर P का। ठीक है, दिस मीन्स अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो इसका कोई ना कोई जनरेटर होगा जो इस ग्रुप को जनरेट कर रहा है। तो लेट A बी अ जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप R अंडर एडिशन, और वो जो जनरेटर होगा वो भी किस ऑर्डर का होगा? प्राइम ऑर्डर का। देखिए, क्योंकि एक रिजल्ट है कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है और उसका जनरेटर है तो ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। ठीक है, तो दिस मीन्स सिंस G जो R अंडर एडिशन है is a cyclic group and A is its generator, A उसका क्या है? जनरेटर है। so तो ऑर्डर ऑफ जनरेटर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप R इज इक्वल टू प्राइम ऑर्डर P हो जाएगा। ओके, अब ऑर्डर ऑफ जनरेटर क्या है? P। ठीक है, तो दैट इज ऑर्डर ऑफ जनरेटर A इज इक्वल टू क्या हो गया? P हो गया। ओके, अब देखते हैं अब हमें प्रूव करना है कॉम्यूटेटिव रिंग। तो लेट x and y be two elements of a ring R. तो we have to prove that it is commutative, that is x y is equal to yx। ये मेरा टारगेट रहेगा। अगर x और y रिंग R के एलिमेंट है, ठीक है, तो अब रिंग R जो है, ठीक है, वो साइक्लिक है। R जो है वो अंडर एडिशन साइक्लिक ग्रुप बना रहा है। R अंडर एडिशन इट फॉर्म्स अ साइक्लिक ग्रुप अंडर एडिशन। दिस मींस कोई भी एलिमेंट होगा, ठीक है, उसको उसका जनरेटर का वो इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंडर एडिशन में वो ग्रुप बना रहा है। अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाए तो देन कोई भी एलिमेंट होगा उस R का वो इंटीग्रल पावर लिखा जाएगा। लेकिन अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन बनाए, अगर अंडर एडिशन की बात की जाएगी तो वो सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दैट जनरेटर लिखा जाएगा। ये आपका बेसिक है जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो ये क्या होगा? सिंस
R under addition is a cyclic group. So x जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स जनरेटर हो जाएगा. आप ये भी कह सकते हैं एंड a इज इट्स जनरेटर. सो x इक्वल टू एन ए फॉर सम n belongs to set of integers. एंड सिमिलरली जो y एलिमेंट होगा वो भी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ a हो जाएगा फॉर सम m belongs to set of integers. ओके, तो नाउ अब आपका टारगेट क्या है? एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स प्रूव करना. एक्स वाई लेकर चलता हूं. एक्स क्या है आपका? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए, और वाई क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए. तो ये हो जाएगा n इंटू एम कर लोगे, ए का स्क्वायर. अब मेरी बात सुनो ध्यान से एन एम को मैं एम एन लिख सकता हूं. क्योंकि बिकॉज एन एम बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना, एंड सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन ऑब्लिक मल्टीप्लिकेशन इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग. किया था पहला रिजल्ट, ये कॉम्यूटेटिव रिंग है. तो सो जो एम एन एम होगा वो एम एन के बराबर लिखा जाएगा. क्लियर है? इंटीजर्स जो होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स जो होते हैं वो कॉम्यूटेटिव रिंग बनाते हैं विद यूनिटी. ओके, तो इसको ये लिख दिया. अब ये हो जाएगा एम ए और ये हो जाएगा एन ए. एम ए क्या था आपका? वाई. वो क्या था? एक्स. तो वाई इंटू एक्स. तो देयरफॉर आपने एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स प्रूव कर लिया फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर. ओके, सो आर इज द commutative ring. Hence proved. Hence R under addition and multiplication is a commutative ring. So ये आपका complete हो गया. Now let us prove another important result. Prove that another important result number second. Prove that a ring R is commutative if and only if this condition hold. A plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab for all a and b belongs to a ring R. R कॉम्यूटेटिव होगी, रिंग कॉम्यूटेटिव होगी अगर ये कंडीशन आपकी होल्ड करेगी. ये कंडीशन अगर होल्ड करेगी तो कॉम्यूटेटिव होगी, कॉम्यूटेटिव होगी तो ये कंडीशन होल्ड करेगी. वाइस वर्सा इफ एंड ओनली इफ ये बोथ साइड से आपका ट्रू होगा. तो इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए फर्स्टली मैं लेकर चलता हूं कि R इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग. फर्स्ट सपोज दैट R is a commutative ring. अगर R commutative ring है सो ये क्या इंप्लाई करेगा? x y is equal to y x. या यहां a और b का जिक्र हो रहा है, मैं ऐसे कह दूंगा a b is equal to b a for all a b belongs to ring R. ये कंडीशन आपकी होल्ड कर जाएगी. Why? Because R is a commutative ring. क्लियर है? इसको हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे, इसको फर्स्ट मान के चलते हैं. ओके,
तो मुझे ये रिजल्ट प्रूव करना है, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलता हूं और राइट हैंड साइड प्रूव करने की कोशिश करता हूं ना। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी इंटू a प्लस बी, इसको मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूं। इसके बाद क्या रिजल्ट आने वाला है, देखिए इधर लगेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या आप राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हो, इसको a प्लस बी मान के, ये a प्लस बी मान के इस पूरे को मैं c मान लूंगा, a प्लस बी को क्या मान लूंगा c। तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a इंटू सी प्लस बी इंटू सी, a इंटू ए प्लस बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी, या इसको मैं पूरे को a मान लू, इसको b प्लस सी मान लू, ठीक है। तो इसको अगर मैं पूरे को a मान लू इंटू इसको b और इसको c मान लू, b प्लस सी, तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी, a इंटू ए प्लस बी ना, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू बी, उस तरीके से हो जाएगा। ओके, तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ चाहे लेफ्ट लगाओ, मीनिंग्स आर सेम। मैं इसको a मान के चल रहा हूं, इसको b, इसको इस पूरे को c मान के चल रहा हूं, तो a इंटू सी प्लस b इंटू सी, तो a इंटू ए प्लस बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी आपका हो जाएगा बाय राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विच इज इक्वल टू, यहां से ये अब लग जाएगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a इंटू बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, इसको b मानो इसको c मानो, a इंटू ए प्लस ए इंटू बी हो जाएगा, प्लस यहां से लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको a मानो इसको b इसको c, ऑब्वियस वही चीजें हैं, समझाने के लिए ऐसे सिंपल लग रही हैं बट लग रही है आपकी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ये थोड़ा सा समझाने के लिए, जब b इंटू ए हो जाएगा प्लस b इंटू बी हो जाएगा, तो यहां से देखिए a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, लेकिन फर्स्ट वो कहता है कॉमोटेटिव है, ए बी को बी ए को ए बी कर सकते हो, मैं बी ए को मैं यहाँ ए बी कर दूंगा, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी, और बी ए को भी मैंने ए बी कर दिया प्लस बी स्क्वायर बिकॉज ऑफ फर्स्ट। अब मैं इतना लिखूंगा बिकॉज आर इज कॉमोटेटिव, वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते थे अगर फर्स्ट वन नहीं करना है तो, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो आपका डायरेक्ट प्रूव हो गया। तो देयरफॉर आपने क्या प्रूव कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर ऑल a b belongs to ring R, so this proves the direct part. Now what about converse part, ये चीज लेकर चलोगे, R को कॉम्यूटेटिव प्रूव करोगे। Conversely, suppose a plus b का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर ऑल a b belongs to ring R। ओके, तो ये आप लेकर चलोगे, we shall show that, हमें क्या शो करना है, R इज कॉमोटेटिव, R को क्या प्रूव करना है, कॉमोटेटिव। इसके लिए मैं क्या 2 एलिमेंट लेकर चलूंगा, ठीक है। फॉर दिस लेट A एंड B बी 2 एलिमेंट्स ऑफ रिंग R, ठीक है। अगर मैं ये 2 एलिमेंट्स लेकर चलता हूं, ठीक है, नाउ अगर मैं a प्लस बी के स्क्वायर की बात करूं, a प्लस बी के स्क्वायर की बात करूं, मेरा टारगेट क्या है, a b इज इक्वल टू बी ए प्रूव करना है। मैं इस कंडीशन को यूज करूंगा, मैं a प्लस बी के स्क्वायर की बात करूं, ठीक है, ये गिवन कंडीशन है आपके पास, ठीक है। अगर मैं a प्लस बी के स्क्वायर की बात करूं, उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, लेकिन a प्लस बी का स्क्वायर आपका है किसके बराबर है, वो इसके बराबर है, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, ये लग जाएगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला या लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला, a इंटू ए प्लस बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी। बार बार इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा बाय, अब आप लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला बनाते हो, इसको a मान के, इसको b प्लस सी मान के, या राइट लगाते हो, इसको पूरे को a, इसको पूरे को इसको a, इसको b और इसको पूरे को c मान के, बाय मैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाता चला। अब देखिए यहां से देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाया, b इंटू ए बी ए, b इंटू बी बी स्क्वायर भी कर सकते हो, b इंटू बी वो एक ही चीज है, तो बाय लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाया आपने, ठीक है। यहां से देखिए लेफ्ट कैंसिलेशन ला लगने से ए स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। क्यों लगेगा लेफ्ट कैंसिलेशन ला? बिकॉज आर इज अ रिंग, सो आर अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप बनाएगा, अगर ग्रुप होगा तो कैंसिलेशन ला होल्ड करते हैं, क्योंकि उसमें एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। ए स्क्वायर का माइनस ए स्क्वायर मिलेगा, कैंसिल कर देगा, ए स्क्वायर का माइनस ए स्क्वायर मिलेगा, कैंसिल कर देगा। सेम तरीके से अगर मैं ऐसे करूं, इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर दूं, तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला से वो चीज भी कैंसिल हो जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे करूं, लेफ्ट से मैंने ए स्क्वायर कैंसिल कर दिया, बचा क्या, बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, इसको मैं बी स्क्वायर प्लस बी ए कर सकता हूं क्योंकि एडिशन है, ए और बी किसके हैं, रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स का रियल नंबर, रियल इंटू रियल रियल, तो रियल नंबर्स अंडर एडिशन कम्यूट करते हैं, तो मैं इसको लेफ्ट राइट पे कर सकता हूं। लेकिन ए स्क्वायर इसके कैंसिल कैसे कैंसिल हुआ, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, तो ठीक है। इधर से फिर जो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से कैंसिल होगा, 2ab इक्वल टू, सॉरी इसमें एक चीज कर सकते हैं हम, कोई बात नहीं, जो हो जाएगा ab प्लस बी है, इसमें ab भी आएगा, ab प्लस a b भी आएगा साथ में, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा b a प्लस a b अगेन बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो यहां से 2ab को मैं क्या लिख सकता हूं, ab प्लस ab इक्वल टू ये ba प्लस ab, राइट कैंसिलेशन लॉ से ab क्या हो जाएगा, कैंसिल बाय राइट कैंसिलेशन लॉ। तो यहां से ab इक्वल टू ba प्रूव हो जाएगा और ab बिलोंग्स टू रिंग R। So dear friends, AB equal to BA for all AB belongs to R, ये आपका कॉम्यूटेटिव हो गया। तो therefore आप कह सकते हो therefore R is commutative, R is commutative। So hence हमने प्रूव कर लिया a ring R is commutative if and only if a plus b का whole square equal to a square plus b square plus 2ab, so ये आपका रिजल्ट प्रूव। So dear friends, जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एग्जांपल है, आई थिंक काफी लेंथी हो गया प्रोसेस, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर अप करते हैं। थैंक यू सो मच।